Back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav, and in the continuation of the ongoing DP series on this particular channel, the coding destination, the question today we are going to solve is very interesting problem, very nice problem to think about. That is LIS. The full form is longest increasing subsequence. So we have discussed about longest common subsequence, we have discussed about longest repeating subsequence. Now it's turn for the longest increasing subsequence. So both the questions that were longest common subsequence and longest repeating subsequence were kind of string questions, right? But it is an integer question. क्यों? क्योंकि नाम में increasing आ रहा है, तो we have to find the longest increasing subsequence in a given integer array. But before starting with this such an amazing and interesting question of dynamic programming, first I would like to tell you about Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? So talking about Newton School is a platform that helps you to build your career in tech specifically, right? It had a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. Okay, and the best thing about Newton School is that after the 6 months long curated course, completion of that particular course, Newton School is connected to a lot of companies which helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed. So the salary that you will be getting from that, you have to pay a part to the Newton School. And this is such an amazing opportunity and initiative taken by the Newton School, and I really appreciate it. So it will be great if you can enroll in it, this amazing opportunity. The link will be in the description. Do check it out. Now moving toward with the main part of this video, that is LIS, longest increasing subsequence. So let me first write an example, and with the help of that we will 583791. This is the example that I have taken, 583791. So पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है क्या, राइट? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मीन्स के ऐसा सबसीक्वेंस बताओ जिसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट हो, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो, एंड इट शुड बी इंक्रीजिंग एज वेल, राइट? तो अब जैसे इसमें व्हाट आई कैन सी, क्या 5 एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? हाँ, अकेला एलिमेंट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग है ही। क्या 5 ओके, तो 5 मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या 5 और 8 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? हाँ। 8 5 से बड़ा है? हाँ, 5 और 8 भी है। क्या 5 8 और 3 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? नहीं। क्या 5 और 3 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? नहीं, अभी तक यही है। फिर 7 पे है। क्या 5 और 7 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? हाँ, तो 5 और 7 मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। क्या 8 और 7 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? नहीं। क्या 3 और 7 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? हाँ, ठीक है। फिर 9 पे आ गए। क्या 5 7 और 9 लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है? मतलब एक क्या इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्गेस्ट, अभी इंक्रीजिंग का देखते हैं। हाँ है। क्या 8 3 7 9? नो। क्या 3 7 9? हाँ। फिर 1 इन सब में से छोटा है, सो देर इज नो ऑप्शन दैट वी कैन टेक इट एज अ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बिकॉज इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल, राइट? सो दिस इज जस्ट व्हाट वी आर हैविंग. So the answer will be 3, either 579 or 379, right? So answer will be 3. So this is how we have to find the longest increasing subsequence. अगर अभी समझ नहीं आया तो let's make it more explanatory. तो सेम एग्जाम्पल के साथ जाना चाहूँगा मैं. 6 और 5 8 3 7 9 1 were the example that we are taking. ठीक है, तो 5 8 3 7 9 1 यहाँ पे हम तैयार हो गए. तो अब मुझे क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, राइट? सो फॉर द केस ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मुझे क्या करना है कि हर एलिमेंट से ये देखना है कि उसके पीछे के कितने एलिमेंट, हर एलिमेंट से मुझे ये देखना है कि उसके पीछे के कितने एलिमेंट उससे छोटे हैं, राइट? जैसे अब मैं आपको लेट मी जस्ट गिव यू द अप्रोच. 5 से छोटा कोई है नहीं, तो चलिए यहाँ पे तो लेंथ 1 है. 8, क्या 5 8 से छोटा है? ठीक है, तो इसके अभी तक की टिल 8 मेरी मैक्सिमम जो है वो 2 है. 5 और 8 का एक बन रहा है 3. ठीक है, अब मैं 3 पे आया, तो 3 पे मैंने चेक किया, क्या 5 3 से छोटा है? नहीं. क्या 3 8 से छोटा, 8 3 से छोटा है? नहीं. तो दोनों एलिमेंट इसके पीछे के इससे बड़े हैं, तो यहाँ पे 1 ही आएगा. 1 क्यों आया?
क्यों? क्योंकि ये अकेला भी तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का एक एलिमेंट हो सकता है, राइट? तो एक अकेला भी तो हो ही सकता है, सो दैट्स वाई यहाँ पे 1 आया। अब यहाँ पे जब मैं 7 पे आया, राइट, तो जब मैंने सॉरी, जब मैं 7 पे आया तो एट द केस ऑफ 7 व्हाट आई एम हैविंग, एट द केस ऑफ 7 जब मेरे पास है कि क्या 5 7 से छोटा है, हाँ, तो एक एलिमेंट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या 8 7 से छोटा है, नहीं। क्या 3 7 से छोटा है, हाँ। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 5 या 3, है ना। अब इन दोनों में से मैं कौन सा लूँगा जिसके पहले के एलिमेंट्स उससे ज़्यादा छोटे हैं, मुझे लॉन्गेस्ट बनाना है ना। तो ये मेरी लेंथ है अभी तक की, जो नीचे जो स्टोर है, सपोज डीपीआर है, तो इस डीपीआर में मेरी ये लेंथ स्टोर्ड है कि मैक्सिमम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस के एलिमेंट्स कितने हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये मेरी वो जो लेंथ है, तो अब इन द केस ऑफ दैट लेंथ व्हाट आई एम हैविंग कि 5 का 1 है, 3 का 1 है, 8 का 2 है, 7 8 7 से बड़ा है, तो ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस बना ही नहीं सकता। तो कोई भी इन दोनों में से मैक्सिमम दोनों 1 है, तो यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। अब इन द केस ऑफ 9, अगर मैं 5 को चूज़ करता हूँ तो मेरा क्या बनेगा, 5 और 9, राइट, है ना। अब अगर मैं 3 को चूज़ 8 को तो 8 को चूज़ करता हूँ, राइट, अगर मैं 8 को चूज़ करता हूँ, है ना, तो मेरे क्या बनेगा 5 8 9, है ना। अगर मैं 3 को चूज़ करता हूँ तो मेरा बनेगा 3 और 9। अगर मैं 7 को चूज़ करता हूँ तो मेरा बनेगा आइदर 5 7 9 और 3 7 9। But the best thing about this, we don't have to return the sequence. We only have to return the, remember the heard it more, just try to hear it more clearly. The only thing that we have to return is the count. तो count के लिए हमें सब sequence की ज़रूरत है ही नहीं. What I can count is हर नंबर से पहले मैं काउंट कर लूँगा कि उसके पहले के सीक्वेंस कितने रिपीट हो रहे हैं, एंड फ्रॉम दैट ओनली आई विल रिटर्न माई आंसर, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम विल बी 3, एंड द केस ऑफ 1 सारे से छोटे हैं तो यहाँ पे वापस लेंथ 1 हो जाएगी। फिर इस एरे का जो मैक्सिमम है दैट विल बी माई आंसर, एंड दैट इज 3, एंड बूम वी आर हैविंग द आंसर राइट हेयर राइट नाउ, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज रियली काइंड ऑफ एन ऑब्जर्वेटरी क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इफ़ यू आर हैविंग अ गुड ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस कि मुझे कैसे करना है, मुझे सीक्वेंस रिटर्न करना ही नहीं है, मुझे केवल काउंट रिटर्न करना है, तो काउंट यू कैन रिटर्न रियली इजीली। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोड। तो इसका कोड भी वही रहने वाला है, ठीक है। तो मैं जस्ट रिमूव इट, राइट। अब इसका कोड पार्ट में हम आ जाते हैं। तो फॉर द कोड पार्ट व्हाट आई विल डू, फर्स्ट लेट्स से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, एंड इन दिस आई विल बी हैविंग वेक्टर इंट ए, ठीक है। ए इज द एरे दैट इज कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट वी रिक्वायर, राइट। तो इंट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट साइज एंड एक डीपी एरे बना लेते हैं हम जिसमें हम स्टोर कर रहे थे सारी चीज़ें। अब वापस मैं अब डीपी की इनिशियलाइजेशन देखना है। डीपी की जो इनिशियलाइजेशन रहेगी वो मेरी थोड़ी अलग रहेगी, और थोड़ी अलग रहने का कारण ये है कि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जब मैं डीपी बनाऊँ, जब मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ तो वो खुद तो अकेला तो एक उस एलिमेंट, मतलब जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है वो अकेला भी उसका एलिमेंट हो सकता है, राइट। तो अगर उससे पहले कोई इससे छोटे हैं ही नहीं तो शुरुआत वहीं से होगी, राइट। तो एक एलिमेंट तो वो होगा ही होगा, राइट। तो मीम सेट dp1 साइज ऑफ dp मैंने कर लिया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब काम है मेरा मेन फंक्शन का, ठीक है। तो रिटर्न LIS लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में इनपुट क्या दूंगा मैं, एक तो दूंगा मैं डीपी एरे, एक तो मेरा असली एरे होगा, एक डीपी एरे होगा, बस और तो कोई ज़रूरत है ही नहीं मुझे, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वापस। मेरा इंट लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, वेक्टर इंट, फर्स्ट में मेरा है a, फिर वेक्टर इंट, यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा कि चेंजेस रिजेंबल होने चाहिए dp, राइट। तो वेक्टर इंट a ले लिया, वेक्टर इंट dp ले लिया है। अब हम शुरू करते हैं हमारा खेल। तो अब खेल में हमें कुछ करना है नहीं, खेल में हमें क्या करना है कि फॉर लूप लगाना है एक, है ना, और फॉर लूप में देखते जाना है, ठीक है। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन i, j प्लस प्लस। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। फर्स्ट लेट मी डिफाइन कि n क्या है। इंट n इज इक्वल्स टू a डॉट साइज, फटाक, ठीक है।
तो मुझे क्या करना है कि हर एलिमेंट पे इटरेट करूँगा, पर हर एलिमेंट से इटरेट करने के लिए मुझे कंडीशन क्या है, मुझे उसके पहले के सारे एलिमेंट्स पे देखना है कि कौन छोटा है, ठीक है, कौन छोटा है और किस एलिमेंट के पहले सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। व्हाट आई वाज टेकिंग, मैं सबका मैक्सिमम ही ले रहा था, इफ़ यू रिमेंबर राइट। तो इसमें मुझे क्या करना है कि डी पी ऑफ आई, फिर इसमें मुझे कंडीशन डालनी कि इफ़ ए ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन ए ऑफ जे, मतलब एक कंडीशन तो होनी चाहिए कि जो मेरा मैं जे क्या है, जे इज़ द ऑल द प्रीवियस एलिमेंट्स फ्रॉम द आई, राइट। आई लेट मी स्टार्ट बाय आई वन, ठीक है। तो जे सारे प्रीवियस एलिमेंट है, तो जे में मुझे ये चेक करना है कि क्या पहली बात तो ए आई ग्रेटर देन ए जे होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि डी पी ऑफ आई इज़ लेस देन डी पी ऑफ जे प्लस वन। ऐसा क्यों, डी पी ऑफ जे प्लस वन, क्योंकि डी पी ऑफ आई तो मतलब सबको वन से इनिशियलाइज करेगा, खुद तो एलिमेंट है ही। अब डी पी ऑफ जे, अगर सपोज जैसे फाइव के बाद 7 आ रहा था, राइट, तो 5 1 है, 7 1 है, पर अगर 5 और 7 लेता हूँ तो 5 एंड 7 तो क्या होगा 5 प्लस 1, तो 5 में क्या है, 1 एलिमेंट स्टोर्ड है 7, तो 1 प्लस 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि डी पी ऑफ आई इज इक्वल्स टू डी पी ऑफ जे प्लस 1, डी पी ऑफ जे प्लस 1, राइट। तो ये हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ वी विल बी डीलिंग विद दिस, एंड एट द एंड ऑफ दिस मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न मैक्स ऑफ डीपी से लेके डीपी प्लस एन। ये आंसर अपने को रिटर्न करना है कि उस डीपी में जो भी मैक्सिमम एलिमेंट था वो था, एंड दिस इज हाउ द कोड वर्क्स, एंड दिस इज फॉर इट गाइस। तो एक बार हम वापस से पावर पॉइंट पे देख लेते हैं। तो हमने करा क्या यहाँ पे कि हमने सिमिलरली सारे ये जो डीपी एरे थी वो बना ली, और एट द एंड इस डीपी एरे में से हमने इसका मैक्सिमम निकाल लिया, एंड दिस वाज द आंसर, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद दिस। So I hope you like this video, I hope you like the explanation. So if you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel, and thanks for watching.